Assalamu alaikum friends, how are you all? Welcome back to Yami's Biology. Hope you guys are doing great, and here I am with another lecture. Okay, so you guys have a know-how about, कहते हैं ना जैसे नो हाउ होती है, you must have the know-how about the population dynamics. Then what is population dynamics? So the population dynamics is all about population and इसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो, and also their dispersal. Think about that population could be any species. ठीक है, इसमें we are not just discussing about the human beings, we are discussing about all kinds of population on this planet. Okay, तो फिर हम उसके dispersal की भी बात करते हैं, हम साथ साथ उसकी dormancy की भी बात करते हैं, and I'll tell you these things with detail in the upcoming lectures, that what is population, how they dispersed, and what about the dormancy, and हम उसकी study करते हैं, study of population. okay, तो study of population में mainly काफ़ी parameters आ जाते हैं जो कि हम line wise discuss करेंगे in detail. एंड ऑल्सो हम फिर इसके बाद इसमें डेमोग्राफिक डेटा की बात करते हैं, लाइक व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डेटा. ओके, सो हम इसमें डेमोग्राफिक डेटा की बात करते हैं, इसमें हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं मेनली कि हम डेमोग्राफिक डेटा को कैसे प्रेजेंट करें, एंड वी हैव द 3 मेन वेज टू रिप्रेजेंट अ डेमोग्राफिक डेटा. ओके गाइस, एंड ऑल्सो अबाउट द एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज. जहाँ हम उसकी प्रेजेंट कंडीशंस की बात करते हैं तो हम उसकी एवोल्यूशन को कैसे भूल सकते हैं, हम उसके पास्ट फिगर्स को कैसे भूल सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उन्हें भूल जाएं और उनको डिस्कस करना रहने दें. ओके, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स की. हु आर मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एंड हम उसको, वैसे ये तो इतना ब्रॉड टर्म नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज 3 थिंग्स जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें आता है पॉपुलेशन, डिस्पर्सल एंड डॉर्मेंसी. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज पॉपुलेशन. लाइक पॉपुलेशन होती क्या है. लेट्स डिस्कस अबाउट population. Sorry for my bad handwriting. Actually, the camera setup and my recording is giving me the issue, so forgive me for that. And no, yeah. So what is population? So population is any species जो कि सेम स्पीशी हो. लाइक ऐसे नहीं है बंदर भी वहाँ रह रहे हैं, इंसान भी वहाँ रह रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेम स्पीशी. ठीक है, तो ऐसी सेम स्पीशी हो, सेम स्पीशी की ऑर्गेनिजम्स हों जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हों. जियोग्राफिकल एरिया, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हों एट सेम टाइम. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम पॉपुलेशन कहते हैं. लाइक हम इसको ले लेते हैं कि फैसलाबाद है, फैसलाबाद में उसमें एक जगह आती है, कोई भी जगह ले सकते हैं, तो आप कोई भी जगह ले सकते हैं. जैसे कि हम लेते हैं पीपल्स कॉलोनी, राइट. So we have a place, the People's Colony in our Faisalabad. This is the specific area of that colony, and in that area what are we going to discuss about is that many people are living in this area.
Like we have other things as well. We have birds, we have animals, we have the other non-living things as well, but currently we are discussing about only the human beings. Okay, so this is the area where the human beings are living, they interacting with one another. There is a same species of human beings, same geographical area, and at the same time they are living. That is considered as a population. Okay, so the population also has a main category, which is metapopulation. Now what is metapopulation? Metapopulation is like the population which is not living in a specific area, but एक पॉपुलेशन की कुछ एनिमल्स यहाँ रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ रह रहे हैं, and other organisms are living here as well. So what are they going to do? They are going to interact with one another and also between one another. Okay, so these populations, they gonna interact with each other as well, and with one population to another population. Okay, so this is the group of population, but सेम स्पीशी का होना लाजमी है कि ये सेम स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे आर गोइंग टू बी डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट पॉपुलेशंस. And now what are they going to do? They are still going to interact with one another. That is an example of metapopulation. We have a perfect example of metapopulation, which is butterfly. Okay, so butterfly जो होती है वो एक जगह पे नहीं रहती है, इसकी जो पॉपुलेशन होती है, बट जो ये दूसरी पॉपुलेशंस के साथ इंटरेक्शन बनाए रखती है. ओके गाइज, सो दिस इज़ इट फॉर द पॉपुलेशन. अच्छा, पॉपुलेशन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की बात करेंगे. तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से पहले मैं आपको इस इक्वेशन का मतलब समझा दूँ. बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, I stands for immigration, D stands for death, and E stands for emigration. Okay guys, so now let's discuss about this immigration and this emigration. हाँ, मुझे बर्थ और डेथ को समझाने की ज़रूरत नहीं है. सो इमिग्रेशन क्या होती है? इमिग्रेशन इज़ लाइक के एक हैबिटेट है, उस हैबिटेट में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लाइक फूड, शेल्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ज़्यादा हैं. तो क्या होगा कि वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे बर्थ रेट बढ़ेगा, ये बर्थ रेट बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो दूसरे हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, दोज हु आर लिविंग इन अदर हैबिटेट्स, दे आर गोइंग टू कम इन दिस हैबिटेट फॉर इट्स because of its favorable conditions and because of its high habitat value. जिसकी वजह से हाई हैबिटेट वैल्यूज़ एक्चुअली कि जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा हों, जहाँ पर फूड और शेल्टर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो. ठीक है, तो दूसरे हैबिटेट के लोग भी यहाँ आना शुरू हो जाएंगे. तो जब दूसरे हैबिटेट के लोग यहाँ आएंगे, सो दिस इज़ कॉल्ड एज इमिग्रेशन, कि किसी हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स की वहाँ के फेवरेबल कंडीशंस को देखते हुए ऑर्गेनिजम्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, दूसरे हैबिटेट से आ रहे हैं और अपने हैबिटेट में भी बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है. लाइक इसमें बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है और जो इनवर्डनेस है दूसरे हैबिटेट से वो भी इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम इमिग्रेशन कहते हैं. सेम इसका ऑपोजिट एमिग्रेशन होता है कि लाइक अगर किसी हैबिटेट में, अब इसी एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस और फूड और शेल्टर तो कांस्टेंट है. तो अगर ये चीज़ें कांस्टेंट होंगी, सो व्हाट इज़ गोइंग फॉर लाइक कि यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी दूसरे हैबिटेट में मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. कुछ का डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और कुछ में क्या होगा कि वो एमिग्रेट करते जाएंगे. सो व्हाट इज़ एमिग्रेशन? एमिग्रेशन में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है वो आउटवर्ड होती है, यानी दूसरे हैबिटेट्स में होती है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, और जो उसमें डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो इसमें एक डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाता है और एक आउटवर्ड मूवमेंट बढ़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इमिग्रेशन. तो अब हम इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं. इक्वेशन क्या है? बर्थ
और इमिग्रेशन डेथ और एमिग्रेशन के बराबर हैं। लाइक अगर किसी भी जगह पर ये चीज़ें कांस्टेंट हैं तो वो इन्वायरमेंट स्टेबल है, ठीक है। यानी वहाँ ना ओवर बर्थ रेट हो रहा है ना बहुत इमिग्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से यानी फूड रिसोर्सेज भी कांस्टेंट हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना उसमें डेथ ज़्यादा हो रहा है ना एमिग्रेशन ज़्यादा हो रही है, यानी ओवरऑल एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की बन चुकी है। लेकिन इसमें क्या होगा कि बर्थ रेट और इमिग्रेशन डेथ रेट और इमिग्रेशन से बढ़ रही है। इसमें अगर बर्थ रेट से ये वाला केस है, इसमें वैसे जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो तो बढ़ेगी, लेकिन कांस्टेंट चूंकि हमारे पास जो कंडीशंस है वो कांस्टेंट हैं, तो इस वजह से ये इतनी स्टेबल कंडीशन नहीं है। बहुत जल्द वहाँ पे फूड एंड शेल्टर कम हो जाएगा और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाई करना शुरू कर जाएंगे। सेम द थर्ड इक्वेशन इज दैट कि जहाँ पे बर्थ और इमिग्रेशन कम हो जाए और डेथ और एमिग्रेशन ज़्यादा हो जाए, यानी वहाँ पे रिसोर्सेज और जो फूड वगैरह है शेल्टर वगैरह है वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अनस्टेबल कंडीशन है यहाँ पे, यानी बहुत जल्द ऑर्गेनिजम्स की डेथ स्टार्ट हो गई है और वो अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, यानी वहाँ के इलाके को बंजर करके दूसरी जगह को वीरान करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन। वो वैसे आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, सो मैं आपको जो बाकी दो टर्म्स हैं डिस्पर्सल और डोरमेंसी वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।